the journey of Lahore Qalandar, you will realize that this franchise is not only about cricket. It's about providing the opportunities to youngsters. लाहौर कलंडर्स को मालिक सुमीन राणा ने नीचे से बनाकर खड़ा किया और अब ये PSEL की एक ताकतवर टीम है। I have to quit my 20 plus years of financial career. Owners are generally, the boss. And if you are the boss, then sometimes players don't feel comfortable. दरमियान में टेबल था, एक तरफ मैं बैठता था, एक शेन बैठता था, तो कहता था सुनील भाई एक इधर रख देंगे ट्रॉफी, एक इधर रख देंगे, नहीं बनी ना सेंटर में। Welcome to the Bricks to Riches podcast. Today I have a gentleman who's hailed all the way from Vancouver. He owns the Lahore Qalandars team, Mr. Sameen. Mr. Sameen, welcome to the podcast. Thank you very much, Amil. Thanks for inviting me. It's a great honor to have you. शुक्रिया आपने बड़ा टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में। तो मुझे ये बताइए समीन भाई, जब आपने ये क्रिकेट टीम शुरू की थी, आपको क्रिकेट का पैशन था. How did you get into cricket? Because this is a wonderful franchise. Myself and my family, we even bid for the PSL franchise, but unfortunately we weren't successful. आपके नसीब में थी, आप कैसे एंटर किया आपने? To be very honest with you, cricket का पैशन तो मुझे बचपन से था, and I was a very good player as well, but not at a very big level. छोटे लेवल पे मैंने खेला था. I used to bowl very fast. टेनिस टेप बॉल से जो हमारी गली मोहल्लों में क्रिकेट होती है, और स्कूल लेवल पे क्रिकेट खेली. लो डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी करता था, छिक्के भी मारता था. सो ऐसे प्लान तो कोई नहीं था, बट इट वाज माय ब्रदर आतिफ who was in Pakistan. I left Pakistan like 25 years ago. I'm a chartered accountant from Pakistan as well as from Canada. Right. So I worked for big multinational companies, Schlumberger, Shell, GE, and I was with GE in Canada when Atif came with this idea of buying the franchise. Atif had no idea about cricket, whereas I was a big fan of cricket. And you played it as well? Yeah, I played it as well. आपने कहाँ खेली, कौन से शहर में पाकिस्तान? मैं लाहौर में. अच्छा. लाहौर में क्रिकेट खेली है. और उस वक्त उस ज़माने में इतना मुझे शौक होता था कि मैं पूरा टेस्ट मैच बैठ के ना, मेरा घर में जो बेसमेंट था उस पर मैंने एक बड़ा प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, और पूरे टेस्ट मैच के 5 दिन देखता था, और उसको एनालाइज करता था कि यार ये इसकी राइट टांग क्यों आगे आ रही है, लेफ्ट क्यों आ रही है, ये बॉलर ऐसे क्यों कर रहा है. तो बॉलर भी मैं खुद ही होता था, बैट्समैन भी मैं खुद ही होता था. तो इट वाज लाइक अ कंप्लीट मैडनेस. और आई रिमेंबर कि मेरी लास्ट गॉड नोज सो मेनी ईयर्स से जो एक रूटीन है, द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज ओपन अप क्रिक इन्फो एंड रीड द स्कोर कार्ड्स. मैं स्कोर कार्ड्स भी पढ़ता होता था कि जी कौन पाकिस्तान में अपकमिंग स्टार है, किसने क्या किया है. आज भी इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच था उसका स्कोर कार्ड देख रहा था, MLC के स्कोर. सो एक हैबिट थी, एक पैशन था. सोचा कभी नहीं था कि मैं क्रिकेट में आऊँगा, बट देन व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम, आतिफ कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट दिस पाकिस्तान सुपर लीग इज कमिंग. तो मैंने उसे कहा कि यार आतिफ ये तो दिस अ बिग टिकट आइटम, वी कांट डू दैट. ही सेड डोंट वरी, you just need to be there. And it was basically Atif. I was stopping him from buying the franchise because I'm a finance guy. It doesn't make much sense. There was a huge challenges in the financial model, and I told Atif that this is going to be a big issue in sustainability. But Atif was very passionate about buying the franchise, and his idea was to provide an opportunity to the youth of Pakistan. So when you will see the journey of Lahore Qalandar, you will realize that this franchise is not only about cricket. It's about providing the opportunities to youngsters and engaging the youth. And that is especially why the less fortunate ones, जो गरीब बच्चा नहीं exactly होता, उसको आप opportunity exactly ये बहुत बड़ा सदका जारी है. And that's the vision we had initially, but we didn't know how we're going to achieve this vision. To be honest with you, we learn it on the job, and there were a lot of learning curves. And that is why I have to quit my 20 plus years of financial career and full time dedicate myself to this franchise. And from ground zero, starting from the naming of the franchise to the designing the kit, to the designing of logo, to designing to doing the song. मुझे पहले वाला असरार का सॉन्ग था, तो मुझे याद है कि सुबह मैं और आतिफ उठते होते थे और हम कहते थे कि आज क्या करना है. पहले स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है, नाम रखना है, टीम बनानी है, किट डिज़ाइन करनी है, और शाम को सरार के स्टूडियो में बैठ के तो गाना बना रहे होते थे. तो एवरीथिंग इज़ डन बाय आवर ओन हैंड्स. हमने खुद अपने हाथों से इस छोटे से बच्चे को बड़ा किया. तमाशा से भी आपका पैशन नज़र आता है, क्योंकि देखें आपकी टीम ने पहले हारी, अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 दफ़ा जीती है 4 सालों में. जी, that's phenomenal.
And that's great. That shows in your passion, your dedication. So जो सा आपने बचपन में सीखा था ना वो analytical हर चीज़ analyze करना, लगता है टीम को आप ही कोच कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा तो प्रैक्टिकली मैं ही कोच कर रहा था क्योंकि कोच थे नहीं, बट लास्ट 10 सालों से मैं टीम के साथ हूँ। शुरू में मैंने एज ए मैनेजर ज्वाइन किया, मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि ओनर कैन नॉट बी अ मैनेजर because no owner Is it has conflict done. of interest or for what It's reason? not a conflict of interest. It's more like nobody has ever. Owners are generally, the boss. And if you are the boss, then sometimes players don't feel comfortable that the big boss is around them. Wow. You are emotional, Yeah. and you are an owner, then you can make wrong decisions because you are the boss, right? And आप अगर क्रिकेट के बारे में इमोशनल हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं यार ये बैटिंग ऑर्डर में ऐसे नहीं होना चाहिए, विच कैन हर्ट द टीम। सो आई डिड नॉट डू दैट फ्रॉम द डे वन। मैं पहले 4 या 5 साल जो था वो सिर्फ मैनेजर था, और मैनेजर क्या था कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था, ड्रेसिंग रूम में बैठता था। सीखा मैंने, बहुत सारे प्लेयर से सीखा। क्रिस गेल हो गए, ए बी डिविलियर्स हो गए, मोहम्मद हफीज़ हो गए, आकिब भाई हो गए, अपने जो स्टार्स थे। तो 5-6 साल के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग दैट कि हाउ डज दिस होल थिंग वर्क। सो यू कैन से कि आई पेड द ट्यूशन फी इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, बिकॉज it is not an easy thing to be a owner and be a team director or a manager, because there is always emotionality which you need to control. अगर आप उसमें in control नहीं है ना तो you will make a wrong decision. तो ये मैंने एक चीज़ सीखी, और thanks to the big players who taught me. ब्रेंडन मैकलम का नाम मैं लूँगा, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। ए बी डिविलियर्स से मेरे बहुत सारी चैट्स हुई। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर थे, लाइक निक कमिंस, लाइक हारून लोगाट. These guys become my friend, and they are the senior administrator, and they have run cricket for a number of years. So मैं उनके साथ, फॉर एग्जांपल निक कमिंस के साथ शुरू में मैं 3 महीने एवरी संडे उनके साथ स्काइप कॉल करता था, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. उस वक्त जूम नहीं होता था, उस वक्त तो स्काइप था. तो ऑस्ट्रेलिया में थे, मैं कैलगरी में था, तो मैं हर आधा घंटा, संडे को आधा घंटा उनसे लर्न करता था कि हाउ डू आई डू दिस, हाउ पीपल डू दिस, फ्रेंचाइज चलानी कैसे है, उसके फाइनेंशियल कैसे मैनेज होते हैं, टीम कैसे मैनेज होती है, मोटिवेट कैसे करते हैं, बिग स्टार्स को कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद द डिसअपॉइंटमेंट. आप सब कुछ करते हो, ड्राफ्ट कैसे करना है. तो एक ह्यूज लर्निंग कर्व था. उसके नतीजे में फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ सिडनी थंडर के साथ. मुझे याद है निक ने मुझे 3 महीनों बाद कहा कि समीन आप नो व्हाट नेक्स्ट, यू हैव लर्न एवरीथिंग, तो अब क्या करना है. मैंने कहा यार मैं बचपन से कोशिश थी कि मैं छोटा था तो सोचता होता था सोने से पहले ना कि मैं पर्थ में बॉलिंग करूँ. आपको मैंने बताया मैं फास्ट बॉलर था, तो पर्थ की विकेट बड़ी बाउंसी होती है ना. तो मैंने कहा यार मैं अब तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे समीन हो सकता है पाकिस्तान में हो जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी ना हो. एंड देयर कम हारिस रऊफ. और हारिस की जो स्टोरी है, you open the door for everybody. एब्सोल्युटली. सो निक के साथ फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वी विल हैव एन एक्सचेंज विद of players, coaches, support staff, and he was kind enough. He was the general manager of Sydney Thunder at that time. So he said, Sameen, we got Pat Cummins and all that, so are you sure your boys who are from the streets can play these guys? I said, Pakistan, despite of all that challenges in those days, I said, still produce Mohammad Amir. And Amir was very, lethal on those days. So he said, okay, if you take that, then I'll allow you to bring the team here. So we then we launched the player development program in Pakistan. We went to the various cities, 8 cities in the first year. 118,000 kids participated and trialed. Out of that, we made 8 team of 128 players. We brought them to Qaddafi Stadium. We had a tournament over there. And the best top 15 under the leadership of Usman Qadir went to Australia, and they played with the Sydney Thunder, Sydney Sixers and Lahore Qalandar. Wow. And then that one of the guy was Haris Rauf. The next season, and then they say rest is a history. Good. That's how the players develop and grow by going overseas. Exactly. तो clearly अल्लाह ने आप में ability दी हुई है, क्योंकि आपने इतना analyze की, इतनी मेहनत की
कि 4 साल में 3 दफ़ा आपने ट्रॉफी जीती. What a wonderful trophy. Yeah. And you won that for the last 3 years, and a huge congratulations to you and your team. How does it feel to win that trophy? Because your passion shows in your body language, the way you speak, the way you're very analytical. How does it feel? You must be above the clouds, above the moon. So first of all, this trophy is probably not mine. This is players. So all the credit should go to the players. No, but it's a team effort. आपने भी मेहनत की, players ने भी की, global structure था. Absolutely, my role was to be there for them. Yes. After first few years of disappointments, one thing I learned is not to focus on results. और ये बहुत मुश्किल है. ये कहना आसान है, but I tell you, it is very very difficult to actually do that. So while I'm in the last 3 seasons when we won. Yeah. My aim was to make sure that we follow the process and we stay in the zone. Neither we get overexcited, neither we get too low. This is what I do. And objectively analyze the situation is my role. Because players, when they are inside, they are giving their 200% and they have the right to be emotional about Yes. it. I don't have a right to be emotional about it. So that is why I provide that the fatherly calmness to the environment and a kind of create an environment where I encourage my player to remain in the zone. तो ऐसे होता है ना, समटाइम आप जीतते हो, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो. उस वक्त मेरी कोशिश होती है कि I bring them to the zone and say, let's feel more. That's why your team is known for Sameem Bhai to have that family culture. आप अपनी टीम को family बोलते हैं. Yeah. Because you're like that paternal father figure. Yeah. That's very good. I think one thing I realized the first season Chris Gayle came to us. Obviously he's a mega superstar, Yes. the boss, Yeah. the universe boss. उस ज़माने में मुझे याद है वो बिग बैश से आ रहे थे और PSL लॉन्च हो रहा था. And he scored 12 ball 50 runs and there was a big noise around Chris Gayle. हमने तो उनको पिक नहीं किया था. फर्स्ट हमारी जो राउंड था हमारी आखिरी पिक थी. 5 आइकॉन प्लेयर थे. Nobody picked him, so he came to us. But now we are so glad that such a big star came to us. तो मैं उनको जब लेने गया, मैं खुद पर्सनली गया एयरपोर्ट लेने में, कोई फ़ैन था उनका. तो मुझे याद है एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक हुई थी ना, वो ये थी कि यार इट्स टू फेक कि मैं उससे कह रहा हूँ कि आप कलंदर की फैमिली हो, कलंदर की जान हो. द गाय जस्ट अराइव्ड एंड मेरा चैलेंज ये था कि हाउ डू आई बिल्ड दैट कनेक्शन, The relationship. क्योंकि हमने, अगर आप देखो ना, हमारी कलंदर की जो स्लोगन्स हैं वो ओवर द ईयर चेंज हुए. पहले होता था लाहौर कलंदर दमादम मस्त, विच इज़ अ वेरी फेमस स्लोगन. फिर आफ्टर दैट वी केम अप विद दिस स्लोगन ऑफ मैं हूँ कलंदर. लाहौर कलंदर, मैं हूँ कलंदर. एंड माई प्लेयर यूज्ड टू से मैं हूँ कलंदर, मैं हूँ कलंदर. ऑल आई वाज ट्राइंग टू डू वाज टू क्रिएट एंड बिल्ड एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल हैव एन ओनरशिप टुवर्ड्स कलंदर. जब 3-4 साल इसी तरह गुजरे और नई चीज़ें फिक्स हो रही थी, तो मुझे याद है एक दिन मैं, आतिफ और आकिब, हम लोग अपने बोर्ड रूम में बैठे हुए थे. एंड आई लिटरली टुक अ मार्कर एंड ऑन अ वाइट बोर्ड स्टार्टेड डिफाइनिंग हु इज़ कलंदर. कि हम जब कहते हैं कि मैं हूँ कलंदर, तो इसका क्या मतलब है? सूफीज़म एंड एवरीथिंग असाइड, बट व्हाट आर हु वी आर. तो हमने अपने आप को एक तरह से डिफ़ाइन किया था उस वक्त. तो उस वक्त ये समझ आई कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं. हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर इस ब्रांड से जब खेले तो वो सिर्फ एज ए प्रोफेशनल ना खेले, वो यहाँ से खेले, दिल से खेले. यूनिटी. वो जब जीते तो उसको यहाँ से खुशी हो, और जब वो हारे तो उसको उतना ही दुख हो जितना कि हमें दुख होता है. अब ये क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम था. तो फिर हमने अपने स्लोगन में एक वर्ड ऐड किया, मैं हूँ कलंदर दिल से. ये दिल से का जो एलिमेंट है ना, ये बहुत सोच समझ के लगाया था. फिर हमने उसके मुताबिक वो कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए जो इस ब्रांड की साइकी या फिलॉसफी के साथ चल सकते थे. सबसे पहले आपका, अगर मैं शुरू से शुरू हो जाऊँ, जो हमारे रिटेंशन में रहे, आई थिंक सबसे पहले डेविड वीज़ा आए थे. उसके बाद शहीन शाफरी, नहीं, सबसे पहले फ़खर थे. फ़खर आए. फ़खर के बाद
डेविड वीज़ा, शाहीन, हारिस, अब्दुल्ला, समान, सिकंदर, हाँ। ये जो पूरी एक फैमिली की हम बात करते हैं ना, ये जो एक लड़ी है, इसमें एक एक मोती जो है ना हमने चुन के परोया है। और वो इसलिए नहीं परोया कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो इसलिए परोया कि वो कलंदर दिल से था। मेरा तो कैरेक्टर से, हाँ, passion और से। अब मेरा चैलेंज ये होता है कि हाउ डू, क्योंकि जब हम पहली दफ़ा जीतने लगे थे ना 7वें सीज़न में, हारिस और शाहीन जो थे वो दे आर लाइक यू नो किड्स टू मी। Yes. मेरे साथ उनका ताल्लुक जो है बिल्कुल बच्चों वाला है। वो मुझे जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, या मैं उनके बारे में जब भी कभी सोचता हूँ तो ऐसे ही सोचता हूँ जैसे मैं अपनी औलाद के बारे में सोचता हूँ। Beautiful. तो मुझे उस वक्त 7वें सीज़न में ये था कि अगर खुदा ना खास्ता फाइनल हम हार गए तो मैं इनके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँगा, बिकॉज दे वर सो पम्प्ड अप। तो मैंने उस दिन रात को, मुझे याद है, शाहीन को और आजिज़ को मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने इनको कहा कि यार आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू यू कि हम फाइनल में पहुंच गए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट देखो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे याद है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, तो शाहीन ने मुझे कहा समझ में नहीं, ये बात नहीं करनी आपने, आप ये सोचें कि कल ट्रॉफी उठा के करना क्या आपने। Beautiful, positive thinking. That guy is unbelievable, I tell you. Yeah. The kind of a belief, the kind of a, उसका जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, अनबिलीवेबल है। उसे कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, उसे मैनिफेस्टेशन। अभी भी इस हाँ, दफ़ा भी हाँ, जब ये ट्रॉफी की था, beautiful, हम बॉटम पे थे, और शाहीन से मैं जब बात करता था तो वो कहता था ज़मीन भाई वो तीसरी ट्रॉफी रखनी कहाँ पे है। मेरे कमरे में आके हम बैठे होते थे ना, तो एक दरमियान में टेबल था, एक तरफ मैं बैठता था, एक तरफ शाहीन बैठता था। तो कहता था ज़मीन भाई एक इधर रख देंगे ट्रॉफी, एक इधर रख देंगे, और नई वाली ना सेंटर में रखेंगे। तो मैं सोचता होता था कि अल्लाह इसकी जो मतलब इतनी पैशन है वो अल्लाह पूरा कर दे, क्योंकि he is unbelievable, I tell He's you. a wonderful guy. He's been on the podcast, very loving, very down to earth, very humble, like yourself, brother. Simi भाई भी बड़े humble है। आपने जो सा फैमिली कल्चर क्रिएट किया अपने प्लेयर्स के साथ, ह्यूमिलिटी, इस्लाम भी यही कहता है, you should be humble. जैसे आप सक्सेसफुल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैं करता हूँ, और मैंने ये चीज़ नोट की, जो सा बंदा कामयाब नहीं होता, हमेशा you have to be humble. गुरूर की इजाज़त नहीं है, इस्लाम भी नहीं इजाज़त देता। You're very loving and kind. कलंदर तो देखें, हम्बल के अलावा हो ही नहीं सकता कोई कलंदर। अगर हाँ। कलंदर हम्बल नहीं है तो फिर तो वो कलंदर ही नहीं है ना, क्योंकि द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कलंदर इज़ अ सेल्फलेस पर्सन, एंड दैट इज़ व्हाई वी गिव दिस नेम टू दिस टीम। मुझे याद है जब नाम दिया था तो बड़ा अनयूजुअल था, लोगों को पसंद नहीं आया था। मेरी अपनी फैमिली में लोगों ने कहा कि यार तुम अपने आप को क्या समझते हो जो ये नाम रखा है। मैं ऑब्वियसली उस वक्त तो नहीं अंदाज़ा था। What is it, just for the English listeners and the overseas Pakistanis, can you give the definition of Qalandar in English? You see, the definition of Qalandar in a very simple way, there are many versions Yes. of it, but for us, a Yes. very simple definition is a person who is selfless. So, there is an emotional and a personal story behind Yes. it, why we give name Qalandar to this team. Many people think that because of the Sufism and all that. No, that wasn't the case. It was my mother. We are 9 brothers and sisters, and I'm the Mashallah, youngest big one. family. That's a big family. So I'm the youngest one, and I mean, she was very close to me. And 2014, she passed away. Sorry to In 2015 December, we got this franchise. So when she passed away, I was in Canada, and last 15-20 years, my only connect with Pakistan was through her. So I used to go to Pakistan only because of my mother, and my Pakistan was her room or Atif's house. There was no third place I used to go. But when she passed away, I told my wife that I'm never going to go to Pakistan because my connection with Pakistan is finished. So my wife told me, she said, you are emotional. And I said, no, I'm damn right. I'm never going to go to that place, because not because of any other thing, but because if my mom is not there, there is no point for me to go there. It's a bit of a personal and emotional thing. So when Atif bought this franchise and he asked me to come, it was middle of the night in Calgary. I was with him. He was going upstairs on the PCB stairs, and I was telling him, Atif, don't bid. Please don't bid. And he was saying, don't worry, bhai, I'll do it. I'll do it. And once he won there, and he called me and he said, Sameen, now I have made this many million commitment. It's up to you. You want to leave me alone or you want to come? It was middle of the night, around 3-4 a.m. in Calgary. I woke up my wife. I told her this is the situation. Next morning, around 10, my wife and my daughters went to Dallas, where my in-laws live.
and 2 o'clock I was in a plane to Lahore. माशाल्लाह. And while I was coming to Lahore, I was thinking that, I made a commitment to myself that after my mom, I will never go. Here I am, I'm going. So I thought, now I need to attach this project, this Lahore Kalandar project, to my mother. It was not a Kalandar name at that time, it was just a team. So was not able to figure it out. Her name was Kausar. So I can't call it Kausar Lahore. I can't call Mother My Lahore. mother's name Kausar, so. I can't call it Mother Lahore because naming rights were with us. So I was not able to link that. So we give a name Lahore Loins to the team because there was a team name before with Lahore, and Loin was a popular symbol and politically was also from Lahore as well. So then one day I was scrolling through my emails and Atif sent me an email a long time ago where the Kalandar's definition was. Yes. So I thought, who is the most selfless person in my life and in your life? Yes. I'll ask you, it's your mother. Of course. Because 9 months she keeps you in herself. Yes. She feeds you. She teaches you everything. She will make sure that your well-being, everything and she does it selflessly without any reward or anything. So this is where I realized that if we attach Kalandar to this franchise, actually this Kalandar is representing my mother and all the mothers who are actually selfless. So that was the reason I gave this name. And once I gave this name, it was obviously very unique, unusual. People will put tigers, these fighters, Yes. gladiators, God knows, kings, queens, whatever. But here is Kalandars. And I think PCB didn't like it. I remember there was a marketing manager. She was like, "बहुत ही बुरा नाम है. What a shitty name you have given to the team. This will be disaster." On another sponsor I went to, he said, "It's a very niche market name. ये भंगी चरसी लोग जो होते हैं ना, ये कलंदर होते हैं." And by the time the evening came, I was so desperate, and I told Atif that, "Shit, man, did I make a wrong decision?" Because for me it was purely my mother and emotion, and it was Atif who said, "Don't worry, brother. This is our team. We'll give it whatever we give it. We will call it Kalandar." And look, today a Kalandar is a household name. माशाल्लाह. And also नाम में बड़ी बरकत होती है. जो सा आपने नाम दिया उसमें बड़ी बरकत होती है. आप 3 दफ़ा जीतते हैं. आपने कहा था जब आप जीतते हैं ये ट्रॉफी 3 दफ़ा 3 out of 4. मेरे ख्याल इसमें शहीन का भी हाथ है क्योंकि शहीन is a great leader and he's very intelligent. He's been on the podcast, Shaheen Shafidi, and also he's a very talented young star in my opinion. Absolutely. अगर कोई और लीडर होता शायद आप जीतते ना. देखिए, शाहीन शाह अफरीदी तो इंस्ट्रूमेंटल है ना लाहौर कलंदर की सक्सेस में. मेरे पास सबसे ज़्यादा कप्तान लाहौर ने बदले हैं. अगर आप 10 साल PSL को उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा कप्तान हमारे हैं. 8 है, कप्तानी 7 है. कोई भी वो नहीं कर सका जो शाहीन ने किया. ना वो ब्रेंडन मैकलम कर सके, ना अजहर अली कर सके, ना मोहम्मद हफीज़ कर सके, ना सुहेल अख्तर कर सके, ना ब्रावो कर सके. दिस इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हु कैप्टन लाहौर कलंदर. तो शाहीन ने तो वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सका. और मुझे याद है जब शाहीन को कैप्टन बनाया था तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं हो सकता. और शाहीन को कैप्टन इसलिए बनाया था कि शाहीन वॉज हार्डली 16 when he came and I was the manager. तो मुझे याद है ब्रेंडन मैकलम था, हमने वहाँ पे ना एक प्रेसिडेंशियल स्वीट को पूरा टीम रूम बनाया. तो ये 16 साल का जब आया तो मैंने सोचा कि यार मेरी बेटी भी 3 साल की है, अगर वो कभी किसी प्रोजेक्ट पे जाए इतने बड़े इन्वायरमेंट में तो कोई बंदा उसको लुक आफ्टर भी करेगा. तो मैंने इसको ना स्पेशल केयर दी. इस वजह से मेंटर किया आपने. मेंटर से ज़्यादा मुझे ये अपने बच्चों की तरह लगा. मैंने कहा यार ऐसे ही है कहीं लॉस ना हो जाए, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ब्रांड. तो मैंने एक पर्सनली जाके इसका इंटरव्यू भी किया. मज़े की बात बताऊँ, ये समझता रहा शुरू में कि मैं मीडिया वाला हूँ. हारिस और ये यही समझते थे शुरू में कि कोई मीडिया वाला है जो हमारा इंटरव्यू कर रहा है. उसको नहीं पता था मालिक. नहीं, उसका नहीं पता था क्योंकि मेरा रोल वो था ना. और वो आई थिंक दिस इज़ माई सक्सेस कि मैं टीम में अपने आप को कभी उस तरह मैंने एक्सर्ट ही नहीं किया. मैं ये समझता हूँ कि आपको जब आप एक इन्वायरमेंट में होते हैं, आपको लीड करना है ना, तो आपको रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते. You have to earn the respect. True. That's worldwide, global phenomenon. Yes. I agree with that. और समीम भाई, अगर मैं होता ना पाकिस्तान का जॉर्ज, मैं तो यूके में बैठा हूँ,
मैं करता, आप और शहीन को पाकिस्तान टीम का इंचार्ज करता, क्योंकि जो से आपने स्किल सेट दिखाया ना, लीडरशिप आपने दिखाई है, शहीन भाई ने दिखाई है, फिर ऐसे पाकिस्तान टीम भी इंटरनेशनली यही करता तरक्की। एक ही बंदा था वाहिद, इमरान खान, जिसने 92 का वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप जैसे लोग हों जिसके पास इतना ब्यूटीफुल एनालिटिकल माइंड है क्रिकेट के बारे में, शहीन जैसे लीडरशिप हो, तो फिर हम तो चाहते हैं ना ऑन द ग्लोबल स्टेज पाकिस्तान की तरक्की हो। देखिए ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब क्रिकेट परवान चढ़ी है वो 92 के बाद ही चढ़ी है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलेशिया कप था जिसमें मियां दत्त ने लास्ट बॉल पे चिक्का मारा था, जावेद मियां दत्त साहब ने। आपको याद है वो दुबई में था? मुझे याद है मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी उस मैच में, रोजे की दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियां पाकिस्तान जीत जाए, मैं रोज़ा रखूँगा, क्योंकि शुरू से बहुत ज़्यादा पैशन था और क्रिकेट को दिल से चाहा है, सच्ची बात बताऊं, और उसके लिए रोया भी हूँ, उसके लिए हंसा भी हूँ। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया कप हो रहा था तो मियां दत्त की लास्ट बॉल पे मुझे याद है मैं दुआएं मांग रहा था और रोज़े भी मांग लिए थे कि मैं रोज़ा रखूँगा, पाकिस्तान जीत गया। इसी तरह 92 का वर्ल्ड कप तो खान साहब ने फ्रॉम नोवेयर जीता। आई थिंक उनका जो बिलीव था ना उस वजह से बारिशों की दुआएं हो रही थी, रमज़ान था। मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप होती है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट लीडरशिप को एक्सेल करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आप दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर ले आए और उसके हाथ पांव बांध के, इसी तरह या किसी स्विमर के हाथ पांव बांध के उसको समुद्र में फेंक दो, को चल, वो नहीं चल सकता। बैट्समैन को ले कहता आपके खब्बे हाथ को मैंने बांध दिया, सच्चे हाथ से खेलो, ऐसे नहीं हो सकता। तो एक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है और उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। 92 के वर्ल्ड कप में जो मेरी याददाश्त है या जो मैंने सीखा था और शायद अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मुझे याद है उस वक्त भी खान साहब भी शायद यही कहते थे कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती क्रिकेट में, फुटबॉल में होती है। याद है अगर आपको याद हो ये बात? मैं अब फ्रेंचाइज की 10 साल मैनेजमेंट के बाद मैं यही बात कहता हूँ, कोचिंग होती है नहीं। देखिए अब मैं तो फ्रेंचाइज की अब बात करूँगा क्योंकि मेरा नेशनल का एक्सपीरियंस है। फ्रेंचाइज के अंदर इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट हार्डकोर। ये जो टाइटल है, फिर आकिब जावेद कोच क्यों रखा हुआ है? आकिब जावेद हमने रखा हुआ था, अब तो मुझे बताएं कैसे आ गया था आपके? आकिब भाई की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हमने फ्रेंचाइज ली थी तो ऑब्वियसली उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की लेजेंड है क्रिकेट में, उनसे बड़ा तो नाम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश भी थी कि उनसे मिलूं। मैं आतिफ के साथ एक दफ़ा वो लाहौर आए हुए थे तो उनसे मिलने चले गए। तो जब उनके पास गए तो उनको बताया कि जी वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर का नंदर लिए। तो उनका पहली दफ़ा मिले थे, पहली दफ़ा मिला था। तो उन्होंने कहा कि पहला उनका क्वेश्चन था, कोई तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं? मैंने कहा सर वो थी इतने की तो पैसे। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कोच किसको रखा है? हमने कहा जी आप बताएं। कहते मुदस्सर नज़र को ले लो। मैंने कहा जी वो ICC अकेडमी में। उन्होंने कहा अच्छा फिर आकिब को ले लो। मैंने कहा जी आकिब भाई भी उधर है। मैंने कहा कौन है तुम्हारे साथ? मैंने कहा इजाज़ है। मैंने कहा चलो इजाज़ भी ठीक है। तो आकिब भाई बेसिकली इमरान खान साहब ने हमें एट अ फर्स्ट गो रिकमेंड किया था। वो फिर लेटर ऑन अगले साल जब आकिब भाई से मुलाकात हुई तो फिर हमें भी लगा कि आकिब भाई इज़ द मैन जो लीड कर सकते हैं। फिर हमने उनको एंगेज किया और फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। माशाल्लाह। So any regrets? Yeah. Any regrets? So you're happy with the coach team and everything? आकिब भाई ने तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है। मैं समझता हूँ कि जो लर्निंग उन्होंने यहाँ पे की वो, और मेरी भी बहुत सारी लर्निंग आकिब भाई के थ्रू हुई। अगर वो ना होते तो शायद मेरा भी कॉन्फिडेंस इतना ना होता, बिकॉज he took a back seat and allowed me to do what I wanted to do, because he was the one who first identified skill in me. उन्होंने, क्योंकि मैं शुरू में जब मैनेजर था तो हारते थे ना, तो मैं सबसे पहले अपने आप को क्रिटिसाइज करता था। मैं कहता था यार मुझे मैनेजर नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से हार रहे। अब बहुत लोगों ने मुझे समझाया, पैडी उपटन हमारे कोच थे, उन्होंने भी कहा कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। ब्रेंडन मैकलम ने मुझे कहा, तो मैं सोचता था यार ये कोच है, ये प्लेयर है, शायद इट वाज आकिब भाई who actually give me confidence कि यार you are the best person who can manage this. And then slowly and gradually I started expanding my analytical role. और by the team 7th season आया, 7th season में तो God tested that skill because right in the eliminators जो playoffs है, आकिब भाई को कोविड हो गया और आकिब भाई तो कमरे में थे। तो जो 7वां ट्रॉफी भी जीता था वो बगैर कोच के ही जीता था। आप खुद एक कोच है भाईजान। देखिए अच्छा मैं मजे की आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान में फ्रेंचाइज के अंदर या दुनिया में ये जो हेड कोच का लफ्ज़ है ना, मैं समझता हूँ ये गलत है। उसकी वजह ये है कि फ्रेंचाइज में कोई कोचिंग नहीं हो रही होती। वैसे तो कोचिंग और टीचिंग को भी लोग कंफ्यूज करते हैं। हमारे यहाँ
जो कोचिंग समझी जाती है कि जी आप एक प्लेयर हैं बड़े और आपने मुझे कोच करना है, तो आपने मुझे बताना है कि बैटिंग कैसे होती है, बॉलिंग कैसे होती है। ये कोचिंग नहीं है, ये टीचिंग है। कोचिंग क्या होती है? कोचिंग होती है, टीचिंग होती है वन वे प्रोसेस। आई ऑर्डर यू, आई इंस्ट्रक्ट यू, डू दिस एंड डू दैट। कोचिंग होती है कंसल्टेटिव प्रोसेस, वेयर you engage the other person and try the other person, help him or her to find the solutions. This is what I do. अब आप इसको कोच कह लें, ये जनरल मैनेजर कह लें, या डायरेक्टर कह लें, बट But you've done a wonderful job. थैंक यू सो So मच। मेरे भाई, the other question to ask you, जैसे इमरान खान ने बोला और देखो तो बड़े पैसे ने, तो आपके जैसे हमने wealth accumulate की अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर्टी का काम करके, रियल एस्टेट का, आपने कैसे accumulate की है? क्योंकि हर पाकिस्तान का सपना है, पाकिस्तानी इंसान का, उनकी भी एक टीम हो ताकि लोग इंस्पायर हो। So how did you? देखिए, हमने accumulate नहीं की, हमने सिर्फ लगाई है। हम नेक टू नेक चल रहे हैं। हम फ्रेंचाइज के अंदर जब आए थे तो लेकिन टीम में कहने का मतलब जब आप कोई भी इंसान टीम के उसके लिए पैसे चाहिए, तो आपके बिजनेस आपका फाइनेंस ही था ना, वहां से। आतिफ था, मैं था, हाँ। और हमारे बड़े भाई थे, हम तीनों ने मिल के ये किया था। अच्छा, तो करके पूल इन करके हाँ। किया था। लेकिन उसके बाद से ये फ्रेंचाइज जो है, देखिए हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो किया हमने, मिलियंस ऑफ डॉलर उस पर लगे। ऑस्ट्रेलिया भेजना, प्लेयरों को साल 2-2 साल रखना, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना, उसे बहुत सारी जदादें बन सकती थी। लेकिन जो मज़ा, जो खुशी हारिस रऊफ़ को वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करते देखने में है ना, यकीन माने इस ट्रॉफी की नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो से बच्चे खेलते हैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली, तो जैसे आपके लिए आपकी फ्रेंचाइज खेलते हैं, वहाँ पे प्लेयर डेवलप होता है जी। हमने पैशन होता है। हमने ये किया कि हमने पहले साल जब हमने टीम खिलाई तो एक इमर्जिंग प्लेयर खेलना मस्ट होता है। तो पीसीबी ने हमें लिस्ट दी, हमने उसमें से 2 इमर्जिंग प्लेयर पिक किए। एक 31 साल के थे, एक 29 साल के थे, और वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। अब हम हार गए। हमने उनसे कहा कि यार आपने इमर्जिंग की लिस्ट क्या दी है? उन्होंने कहा पाकिस्तान में यही टैलेंट है। पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। और बड़े हमारे ग्रेट्स ने टीवी के ऊपर, कैमरे के ऊपर ये बात एक्सेप्ट की हुई है कि पाकिस्तान में टैलेंट फिनिश हो गया। उस वक्त 2016 में हमने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट इसलिए किया क्योंकि अब हम इस बिजनेस में आ गए हैं कि टैलेंट ही खत्म हो गया, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो हमने कहा हम स्ट्रीट्स पे जाएंगे। भावलपुर से हम भी ऐसे करते थे, उन्होंने वसीम अकरम को स्ट्रीट से ढूंढा था। Exactly. वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सारे ऐसे ही आए थे। आकिब भाई भी वैसे ही आए थे। ये जो इंजमाम भी ऐसे बकार यूनुस की लंबी गली क्रिकेट खेल के ना, गली क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का पैशन है। वो जिस चीज़ का पैशन वो तो होता मजहब है ना, तो वो वहाँ पे टैलेंट देखें क्या होता है। अब अगर आप टैलेंट को डिफाइन करेंगे ना, टैलेंट इज़ एन एनवायरनमेंट। माँ के पेट से टैलेंट डेवलप होना शुरू होता है। जिस माँ को शौक होता है ना क्रिकेट देखने का, उसके बच्चे में वो टैलेंट ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। लेकिन सुमीर भाई, जैसे इमरान खान ने टैलेंट देखा वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम में, तो इमरान खान भाई ने उनको ग्रूम किया। ऐसे आपने किया लाहौर कलंदर के साथ। आप टैलेंट देखते हैं, फिर ग्रूम करते हैं। बहुत एबिलिटी होती है, हर बंदा नहीं कर सकता टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। तो अल्लाह ने आपको एक ब्लेसिंग तौफीक दी है, you bring the best out of people, so that's a huge challenge. I think और आपकी नीयत साफ है। जैसे आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, क्रिकेटर, गरीब क्रिकेटर की मदद, इससे अल्लाह, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं 5 वक्त का नमाजी जैसे आप हैं, कि अल्लाह ने इसलिए आपको तरक्की दी। इस दफ़ा 3 दफ़ा आपने ये ट्रॉफी जीती है क्योंकि ये इंटेंशंस आर गुड and you want to help the poor child in Pakistan. Absolutely. I think हमारा one of the song we had last time around, उसकी एक लाइन थी, नीयत का खेल है दिल की आवाज़ सुन। तो ये सिर्फ नीयत का खेल है। देखिए, जीत हार तो होती है गेम में। इज़्ज़त वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त अल्लाह देते हैं। और अल्लाह अगर आपको इज़्ज़त देते हैं तो उस पर शुक्र अदा करते हैं, उस पर हम प्राउड नहीं होते। ना हमें ये है कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। हमारी एक जो फैंस हैं, मुझे उनके लिए बहुत खुशी है क्योंकि उन्होंने बड़ा सफ़र किया पहले 4 साल। उनको दे वर सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ बैशिंग, क्रिटिसाइज भी किया। जो अभी इवन इस दफ़ा मोहम्मद नईम जब हम खिला रहे थे, अब मोहम्मद नईम मेरा क्या लगता है, कुछ भी नहीं। और 6-7 साल से उसको डेवलप किया। पहले 7 मैचों में उसका स्कोर था 167। तो पूरी पाकिस्तान में मीडिया हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि देखो जी, अपने बच्चे खिलाते हैं, डोमेस्टिक को ये नहीं करते। वो भी तो पाकिस्तान का ही बच्चा है, पारा चिनार से। हमारा तो कोई भी वहाँ पे जानने वाला नहीं, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी। आखिरी 4 मैचों में नाउ ही एंड अप 3rd हाईएस्ट स्कोरर,
156 स्ट्राइक रेट, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये नीयत की बात है। और आप ये भी कर सकते हैं, आपका ये नीयत ये है, a lot of people like businesses when we buy a real estate for let's say 10 million, we spend 14 developing it, we can sell for 100, and people buy teams and sell it, जैसे फुटबॉल टीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आप लाहौर कलंदर्स बेच भी सकते थे, लेकिन आपका पैशन की वजह से आपने you could make a good profit now. Absolutely, this is a baby for us. Yes. देखिए, जिसका नाम ही अपनी माँ के नाम पे हमने रखा हो तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि हमें ये लगता था, अभी भी लगता है कि जब कलंदर की, देखिए जब जो लोग चले जाते हैं ना इस दुनिया से, उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है। तो जब कोई कलंदर को प्रेस करेगा, कलंदर को दुआ देगा, उसका सिला हमारी माँ को जाएगा। बिल्कुल, beautiful approach. So that is what the So whole idea. that's a great thing that you're doing, Sadqa Jariyah, helping the people. Absolutely. And one other thing I would say to say, Sameer Bhai, you are a overseas Pakistani like me. और पाकिस्तान की तरक्की यही होगी अगर overseas पाकिस्तानी अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में, दुबई में, पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करें, तो फिर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान को GDP इनकम की ज़रूरत है. So my elder audience listening, whoever is listening from anywhere in the world, invest in your mother country in Pakistan. So that's how Pakistan can excel and get rid of its foreign debt. Any other message you'd like to give to somebody? I think you rightly mentioned about the expatriate, me being an expatriate for last 25 years as well. I tell you, I think we feel a lot for Pakistan while sitting outside, away from home. Maybe we value Pakistan even more than when we were living in Pakistan, because you realize living here, what are you missing? So that's why the emotional connect is always there. And I think the expatriate population is the real backbone of Pakistan economy. And we need to make sure that we continue to support our country. We need to make sure that Pakistan hai to hum hai. That is the purpose and that is the message. So my message simple to my, all the fans of Lahore Qalandar is that keep supporting your player, keep supporting your heroes. Good or bad performances is a part of the game. Don't degrade them. Because heroes बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और जिन कौमों के heroes मर जाते हैं ना, वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं. I totally agree. So Sameer Bhai, thank you so much for making time out of your busy schedule. I know you're busy. And have a wonderful dinner this evening with my brother. Thank you so much.